So now here is your next topic, that is prime and composite number. We have already discussed this topic also in our previous class. So let's take a quick revision. First is prime numbers. What are prime numbers? The natural number which have only two factors, 1 and the number itself. What I have said, a prime number is a natural number having only two factors. So you can write like simply a natural number, because आपका वो natural number ही होगा जो भी आप question solve कर लोगे. Natural number known as all the counting numbers. A natural number having only two factors. Only two factors, not product. Namely 1 and the number itself. जो भी आपने क्वेश्चन में नंबर लिया है वो नंबर खुद, and the number okay. So what are prime numbers? A natural number having only two factors, 1 and the number itself. For example, 2. How many factors of this 2? Only two factors, 1 multiply 2. इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो और यू विल गेट अगेन द 2. So 1 multiply 2, that means this 2 is a prime number. Now 3. Is 3 a prime number? Let's take as factor 1 multiply 3. अब आप किसी भी और दो नंबर से मल्टीप्लाई करो, you will can't get other than this factors 1 and 3. Clear? Now 4. Is 4 a prime number? Let's hear. फैक्टर्स ऑफ 4 मीन्स ये 4 किस किस टेबल से आप डिवाइड कर सकते हो, किस टेबल में आ सकता है. 1 इज द फैक्टर्स ऑफ ऑल दी नंबर्स. 1 जो होता है वो सारे नंबर्स का फैक्टर में काउंट होता है. ठीक है. नाउ 2 2 जा 4, यस आता है. 3 में नहीं आएगा. 4 1 जा 4 मीन्स फैक्टर ऑफ दिस 4 इज 1 2 4. दैट मीन्स दिस 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. क्लियर? अबाउट 5, फैक्टर ऑफ 5 इज 1 मल्टीप्लाई 5. Other than no number can multiply and get a 5. किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, आपको नहीं मिलने वाला 5 किसी और से. ठीक है. 6 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे. 7 का फैक्टर आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाई 7, ओनली 2 फैक्टर्स. 9 नो 9 नहीं होगा बिकॉज 9 किस में आ जाएगा 1, फिर 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 मीन्स 9 has 3 factors, that is known not a prime numbers. ठीक है. तो ऐसे आपको स्टार्टिंग करते जाना है. The number which have only 2 factors are known as prime numbers. Clear? Now the second topic is composite number. Now what are composite number? A natural number having more than 2 factors. एटलीस्ट 3 तो होना ही चाहिए.
मीन्स जैसे अभी अपन ने 4 के फैक्टर्स फाइंड किए तो उसके 3 फैक्टर्स आपको मिले थे, तो दैट नंबर इज नोन एज योर कंपोजिट नंबर. तो अ नंबर और अ नेचुरल नंबर having more than 3 factors. More than 2 factors. A number which having more than 2 factors. It can be 3, it can be 4, it can be 5. Clear? For example, 4. Factors of this 4, 1, 2 2s are 4, 4 1s are 4. The factor of 4 is 1, 2, 4. Now, question number 2. Factors of 6. How many factors of 6? 1 to already 2 3s are 6 means 2, 3 2s are 6 means 3, 6 1s are 6 means 6. So how many factors of 6? 1 2 3 4. 4 factors of 6 is here. Means composite number में क्या होगा? A number which having more than 2 factors. तो आपको यहाँ पे more than 2 factors मिल गए. That numbers are known as composite number. Now the third point is twin primes. What are twin primes? अब इस जब अपन इस ट्विन प्राइम की बात करेंगे तो फर्स्ट आप लोग एक बार रीड करो कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. ट्विन प्राइम मीन्स हो जाता है कि एक तो वो कंडीशन फॉलो करना चाहिए प्राइम नंबर्स की. दैट मीन्स दैट नंबर शुड बी ओनली 2 फैक्टर्स एंड उसका जो गैप है कि अगर 2 नंबर की बात हम कर रहे हैं तो उसके मिड में एक कंपोजिट नंबर आना चाहिए. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 numbers are here and this 3 and 5 is twin prime because इनके मिड में जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है एक कंपोजिट नंबर. द prime number which differ by 2 are called twin primes. The prime number which differ by 2 are called twin prime numbers. फॉर एग्जाम्पल अभी अपन क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं. ये यहाँ तक ही एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा ट्विन प्राइम आपको जब भी फाइंड करना होगा तो फर्स्ट थिंग उसके 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए, फिर उनके मिड में एक कंपोजिट नंबर आना चाहिए. तो जैसे अपन स्टार्ट किया 3 and 5. मैं ये 2 और 3 क्यों नहीं ले रही हूँ? बिकॉज 2 और 3 कंटिन्यूटी में आ गए. कंटिन्यूटी में आएंगे तो इसको हम लोग ट्विन प्राइम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी. अब जैसे 3 प्राइम नंबर था, 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम नंबर आ गया. मीन्स 3 के मिड में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर आया और 5 आ गया. तो ट्विन प्राइम आपका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 3 and 5 आर ट्विन प्राइम. सेम एज फॉर योर 5 और 7 बिकॉज 5 और 7 के मिड में 6 आ गया. 6 इज अ कंपोजिट नंबर. नाउ नेक्स्ट 11, क्योंकि 7 के बाद 8 9 दोनों कंपोजिट नंबर में चले जाते हैं. 11 के साथ ऐसा कौन सा नंबर होगा जो उसके साथ ट्विन करेगा? तो 11 के बाद है 12. 12 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. आप लोग फाइंड करके चेक कर लेना. और फिर आता है 13. 13 हैज ओनली 2 फैक्टर. तो 13 इज ऑल्सो नोन एज अ प्राइम नंबर. तो योर नेक्स्ट सेट इज फॉर प्राइम नंबर इज ट्विन प्राइम इज 11 and 13 एक्सेट्रा. आप इस तरह से ही
सारे और भी ट्विन प्राइम नंबर्स फाइंड कर सकते हो. नाउ को प्राइम नंबर. अगेन व्हाट आर को प्राइम नंबर्स. आप थोड़ा सा प्राइम नंबर्स देखो, फिर ट्विन प्राइम देखो, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा. So, co-prime number, that means two number which have only common one factor, that is 1. means आप कोई दो नंबर लो, जैसे एग्जांपल 2 और 3. इन दोनों की जो फैक्टर्स है, 2 का फैक्टर है 1, 2 क्योंकि इसके दो ही फैक्टर है. 3 का फैक्टर है 1, 3. तो 2 नंबर्स आपको ऐसे लेने हैं जिसके साथ जो कॉमन फैक्टर निकले वो सिर्फ हो 1, और वो भी 1 कौन सा, ये काउंटेबल वाला 1. Two number which have only one common factor, that is 1, is known as co-prime number. A number which have only two common factors. A number having only one common factor, that is 1. एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो भी काउंटिंग नंबर से आप चेक करो तो 1 होना चाहिए. फॉर example is 2 and 3 are co-prime. 2 and 3 क्यों होगा ये, तो इसको आप ऐसे लिखो. फैक्टर्स ऑफ 2 is 1, 2. फैक्टर्स ऑफ 3 is 1, 3. तो कॉमन क्या मिला आपको, this 1 and this 1. that is why this 2 and 3 are known as co-prime numbers. now the other examples of co-prime numbers are, you can take any number. जैसे for example 3 and 5 are known as co-prime numbers because यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा 3, 5 के बाद. बट एक चीज यहाँ पर आ जाती है कि अपने पास ये ट्विन प्राइम में काउंट नहीं होने चाहिए, तो कंडीशन फॉलो चल रही है अपनी, ठीक है. 5, 7 कुछ भी आप ले सकते हो. को प्राइम नंबर तो अपना साइड हो ही जाएगा, इस ट्विन प्राइम तो इसके अंदर आ ही जाएगा को प्राइम के अंदर. लेकिन को प्राइम के लिए सिर्फ आपको यही कंडीशन होनी चाहिए, दैट two numbers having only one common factor. For example, we can take 2 and 8. क्या ये 2 और 8 दोनों को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं अभी चेक करेंगे. सिर्फ समझना इस चीज को. कंडीशन अपन दोनों मैच करके देखते हैं. 2 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 and 2. 8 का 1, 2, 4 and 8. कंडीशन क्या है को प्राइम की, अ नंबर हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज 1. यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ तो 2 भी कॉमन फैक्टर में आ गया. तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2 और 8, ये जो 2 और 8 है ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे. मीन्स आपका मैक्स टू मैक्स एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और वो जो एक कॉमन फैक्टर होगा वो भी सिर्फ 1 होना चाहिए. उसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए.